Good morning, dear children. Children, in our Zoom class, we have started our chapter number 9, Pratapgarh makes history. In that, we have seen that Adil Shah and his Sardars were all very unstable because of Shivaji Maharaj's bravery and their exploits. And the queen, the Dowager Queen, the Badi Sahiba asked straight in the court who is willing to march against Shivaji Maharaj and put an end to his rebellion. So no one was ready in the court of Adil Shah to fought against Shivaji Maharaj, but a huge man bowed his head respectfully before the throne, and the name of that man was Afzal Khan. Afzal Khan accepted the challenge, and he said, I will bring Shivaji in the court either alive or dead." Okay, and he marched towards the Pratapgarh. And Shivaji Maharaj realized that the Swaraj was now in danger. He alone cannot fought against this huge army. Shivaji's Maharaj army was so small as compared to Afzal Khan's army. So Shivaji Maharaj tactfully handled this situation, and he moved towards Pratapgarh. He shifted his headquarters from Rajgarh to Pratapgarh. Why? Because Pratapgarh was surrounded by dense forest, and in that forest there were wild animals, and the path to go to Pratapgarh was also not proper, so it would be difficult for Afzal Khan to go there along with his army. Okay, so even Afzal Khan was so angry with this with this situation, and he done many tactics to bring down Shivaji Maharaj on the plains, but Shivaji Maharaj was not ready to leave Pratapgarh. So Khan initiated that he sent a friendship message, and he said to Shivaji Maharaj that you are like a son to me. Come and see me and return our all forts, and I shall see that Adil Shah will make you a Sardar at his court. Okay, up till that we have studied yesterday. So we will now move forward. Take out your EVS2 test books and page number 33. Tit for tat. That means jaise ko taisa. Shivaji quickly saw through the Khan's offer. He was taking no chances. Means Shivaji Maharaj was fully prepared as to what the Afzal Khan is going to do. What would be his next move? He decided somehow to pursue the Khan to come up the fort. And what Shivaji Maharaj done in reply to the Afzal Khan's action, he persuade यानी उचकाना, किसी को फूस लगाना. What he did, he persuaded Khan यानी अफजल खान को उचकाया, फूस लगाई कि rather than I will come down in the plains, it is better that you come up to Pratapgarh, to the fort. In reply to Khan's message, he said means who? Shivaji Maharaj said, Khan Sahib, I am guilty of having captured your forts. I must have your promise of pardon for this. Please come and meet me at the foothills of Pratapgarh. I am really afraid of coming down to the plains to meet you. एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था. शिवाजी महाराज का प्लान था कि कैसे भी करके अफजल खान को प्रतापगढ़ बुलाया जाए. तो उन्होंने क्या मैसेज दिया कि आई एम वेरी, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपके सब फोर्ट्स मैंने कैप्चर किए, बट मैं आपको एक प्रॉमिस ये कर सकता हूँ, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे माफ़ कर देंगे. पार्डन फॉर दिस यानी एन एक्शन ऑफ फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना. आप ही आइए, प्लीज़ कम एंड मीट मी एट द फुट हिल्स ऑफ, यानी आप ही मुझे आइए प्रतापगढ़ पे मिलने के लिए. आई एम रियली अफ्रेड, यानी मुझे बहुत डर लग रहा है. आई एम रियली अफ्रेड ऑफ कमिंग डाउन टू द प्लेन्स टू मीट यू. दिस रिप्लाई ऑफ शिवाजी प्लीज्ड अफजल खान. शिवाजी महाराज का ये रिप्लाई सुनकर अफजल खान बहुत खुश हुए. पासिंग हिज फिंगर्स थ्रू हिज बियर्ड, ही स्माइल्ड एंड सेड, सी हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अफजल खान. उनकी बियर्ड कैसी है? उन्होंने अपने बियर्ड में ऐसे हाथ घुमाए और कहा, दिस इज़ गुड न्यूज़. व्हाट कैन शिवाजी डू अगेंस्ट द माइटी अफजल खान. और उन्होंने बोला कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, खुश खबर है.
और अफजल खान इतना माइटी, इतना ब्रेव, अफजल खान के सामने शिवाजी क्या कर सकता है? ही हैज़ नो गट्स टू फाइट विथ मी, उसमें कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी हिम्मत नहीं है मेरे अगेंस्ट फाइट करने के लिए. आई शैल माई सेल्फ गो टू प्रतापगढ़ एंड पुट एन एंड टू हिज लाइफ when we meet. मैं खुद प्रतापगढ़ जाऊंगा और उसे मार डालूंगा जब मैं उसे मिलूंगा. यही शिवाजी महाराज चाहते थे कि उन्हें अफजल खान को उचकाया, उनको उकसाया कि वो प्रतापगढ़ आए, और वही हुआ. सो ही एग्रीड टू शिवाजीज प्रपोजल. द मीटिंग प्लेस. द माची ऑन प्रतापगढ़ वॉज चूजन एज द meeting place. Sorry children. A date and time was fixed. It was agreed that each one would be accompanied. Accompanied यानी उनके साथ. What is the meaning of accompanied? उनके साथ. By a servant यानी एक नौकर रहेगा, and followed by 10 bodyguards at a distance. एक नौकर रहेगा उनके साथ और 10 bodyguards रहेंगे, वो भी कुछ डिस्टेंस यानी उनके साथ में नहीं रहेंगे, कुछ डिस्टेंस पे खड़े रहेंगे. A special road was constructed for the convenience of the Khan. और अफजल खान के लिए एक स्पेशल रोड भी बना है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रतापगढ़ पर पहुंचने के लिए प्रॉपर रोड नहीं था. इसलिए शिवाजी महाराज ने एक अफजल खान को लगे कि नहीं, शिवाजी सही में मुझसे मिलना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, वो सब दिखाने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, उनके आने के लिए एक कन्वीनियंट पाथ रेडी किया, एक रोड रेडी किया. एंड अ बिग शामियाना पुट अप फॉर द मीटिंग. और एक बड़ा शामियाना. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शामियाना? जिस तंबू पर कपड़े से ऐसे बनाते हैं, यू कैन सी इन द पिक, रस्सी से और तंबू से, और उसके ऊपर कपड़ा ऐसे डालते हैं, उसे बोलते हैं शामियाना. इट हैज़ डोर्स एंड विंडोज़ टू. यू कैन सी दिस पिक. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ शामियाना. आपने शिवाजी महाराज के पिक्चर्स भी देखे होंगे, ओल्ड मूवीज़ देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा शामियाना. इज़न्ट इट? यस. देन एवरी मूव ऑफ शिवाजी वॉज मार्क बाय ग्रेट कॉशन. यानी शिवाजी महाराज अपनी हर एक चाल बहुत ही केयर से, बहुत ही यानी खबरदारी से ले रहे थे. ही डिवाइडेड हिज आर्मी इनटू स्मॉल यूनिट. शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपनी जो भी आर्मी थी, अपनी जो भी सेना थी, उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया. ईच यूनिट वॉज टोल्ड वेयर टू हाइड एंड व्हेन एंड हाउ टू एक्ट. और हर एक यूनिट को बता दिया कि आपको कहाँ छुपना है, हाइड यानी छुपना, कहाँ छुपना है और कब और कैसे आपको एक्शन लेनी है, क्या करना है. He took every measure for safety and left nothing to chance. उन्होंने अपने सेफ्टी और अपने आर्मी के भी सेफ्टी के सभी ही इसकी बहुत अच्छी से केयर ली, और कोई भी गलती हो इसका कोई भी चांस नहीं था. Many of his advisors tried to dissuade him from meeting the Khan. लेकिन शिवाजी महाराज के भी जो एडवाइज़र्स थे, जो उन्हें अच्छी सलाह देते थे, उनके जो सलाहकार थे, एडवाइज़र्स यानी सलाहकार, वो उन्होंने डिस्यूड यानी मना करना, कि इसके नॉट टू टेक एनी एक्शन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्यूड? कि आप कोई भी एक्शन मत लो. तो वो जो सलाहकार है, एडवाइज़र्स है शिवाजी महाराज के, उन्होंने बोला कि आप अफजल खान से मिलने मत जाओ. द खान्स वर्ड कुड नॉट बी ट्रस्टेड. क्योंकि अफजल खान ने जो बोला है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, उस पर हम विश्वास नहीं रख सकते. बट शिवाजी ब्रश असाइड दिस एडवाइस एंड डिसाइडेड टू मीट द खान एज अरेंज. लेकिन शिवाजी महाराज ने ये सब ठुकरा दिया, उनकी एडवाइस सब ठुकरा दी. ब्रश ने सब ध्यान नहीं दिया और कहाँ गए? ही डिसाइडेड टू मीट द खान. जैसे उन्होंने अरेंजमेंट कराई थी, जैसे वैसे ही उनसे मिलने के लिए रेडी हो गए. बिफोर द मीटिंग, सी चिल्ड्रन, इन दिस पिक यू कैन सी, इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. ये जो है ये शिवाजी महाराज के सब लड़ाई के वक्त पहनने के सब कपड़े हैं, हेलमेट है, दान पट्टा है, वाघ नख है, बिछुआ है, कोट ऑफ मेल यानी आयरन का इसका बना हुआ कोट अंदर से उनके सेफ्टी के लिए. ऑन द डे ऑफ द मीटिंग, शिवाजी विजिटेड भवानीज टेम्पल in the morning and took the darshan for blessings. Okay,
Soon after he started putting on his ceremonial clothes, यानी फॉर्मल क्लोथ्स, यानी आपको शिवाजी महाराज का पहराव पता है ना, वो पहनने के लिए वो पहनने लगे. He wore his sarwar and coat of mail. उन्होंने अपना सरवार पहना and coat of mail. You can see here. This is the coat of mail. On his head he placed the jeer tope. This is jeer tope. This one is jeer tope. And tied a mandil around it. He fitted wagnak onto the fingers on his left hand. This is wagnak. Hidden inside the left sleeve was a bichwa. और एक अपने स्लीव के अंदर उन्होंने क्या ये किया, बिचवा. दिस इज बिचवा, दिस इज बिचवा, दिस इज वागनक, दिस इज कोट ऑफ मेल, दिस इज जी टोपे, that is helmet that used to wore on the head, and this one is dan patta. Okay, he fitted wagnak onto the fingers of his left hand. Hidden inside the left sleeve was a bichwa, and he carried the dan patta in his hand. He was now ready to face the Khan. All the sardars were waiting outside. Shivaji turned to them and said, यानी सभी जब शिवाजी महाराज ये सब रेडी होके बाहर आए, तब उनके सभी सरदार उनकी राह देख रहे थे. शिवाजी महाराज ने उनकी तरफ देखा और कहा, शिवाजी turned to them and said, friends, each one of you must carry out the duties assigned to you. यानी फ्रेंड्स, आप सभी को जो जो ड्यूटी अलॉट की है वो आपको अच्छी तरह से निभानी है. आई एम श्योर द गॉडेस भवानी विल सी दैट वी सक्सीड. और मैं ये आशा करता हूँ कि भगवान हमें हमारी इस बैटल में हम जीतेंगे. बट इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग एंड आई एम किल्ड, डू नॉट लूज हार्ट. लेकिन अगर ऐसा गलती से अगर ऐसा कुछ हो गया कि मैं ये मीटिंग में मारा जाऊं, तो आप दुखी मत होना. डोंट लूज़ योर हार्ट. इंस्टॉल संभाजी ऑन द गादी. आप संभाजी को गादी पे यानी राजा बना देना. संभाजी कौन है? शिवाजी महाराज के बेटे. एंड फॉलो द कमांड्स ऑफ माँ साहेब. माँ साहेब, हु वॉज माँ साहेब? यस, जीजाबाई. और उनके सब आदेश का पालन करना. फाइट फॉर स्वराज एंड एक्सटेंड इट्स बाउंड्रीज. और हमेशा स्वराज के लिए लड़ना और उसे स्वराज को बढ़ाना है. मेक द सब्जेक्ट्स हैप्पी. सब्जेक्ट्स मीन्स जनता, प्रजा. प्रजा को हमेशा कैसे रखना है? खुश रखना है, हैप्पी रखना है. आई शैल गो नाउ टू मीट द खान. और अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं खान से, अफजल खान से मिलने जा रहा हूँ. अभी शिवाजी महाराज के साथ कौन कौन गए? 10 लोग जा सकते थे और एक सर्वेंट जा सकता था. तो वो कौन कौन लोग थे? ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज वकील पंताजी गोपीनाथ एंड 10 बॉडीगार्ड्स इंक्लूडिंग जीवाजी महाला, संभाजी कावजी, येसाजी कनक, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्धि इब्राहिम एंड अदर्स. ये सब लोग शिवाजी महाराज के साथ गए. When Shivaji reached the Shamiana, now children, you know how the Shamiana looks, isn't it? Yes. When Shivaji reached the Shamiana, he saw that Khan had already arrived. जब शिवाजी महाराज शामियाना में पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि अफजल खान वहाँ पर पहले ही पहुँच चुके हैं. He was busy planning his future moves. और अफजल खान कुछ सोच रहे कि अभी शिवाजी महाराज आएंगे तो मैं क्या करूँगे, ऐसे इसमें वो बिजी थे. स्टैंडिंग बाय हिज साइड वॉज एन आर्म्ड सोल्जर. और उनके बाजू में यानी अफजल खान के बाजू में एक सोल्जर खड़ा था जिसके हाथ में हथियार थे. आर्म्ड सोल्जर यानी जिनके हाथ में हथियार है. बड़ा सैयद बाय नेम. और वो जो आर्म सोल्जर अफजल खान के बाजू में खड़े थे उनका नाम क्या था? बड़ा सैयद. ही वॉज हाईली स्किल्ड इन द यूज़ ऑफ दान पट्टा. और ये जो बड़ा सैयद था ये बहुत ही ट्रेंड था किसमें? दान पट्टा में चलाने में. You have seen the picture of दान पट्टा, isn't it? It is given in your text book on page number 34. Okay. Shivaji came to the entrance of the Shamiana, but on seeing Bada Sayyid, he stopped and would not proceed further. जैसे ही शिवाजी महाराज शामियाना जो है उसके दरवाजे पर आए, उन्होंने देखा कि
बड़ा सैयद अफजल खान के साथ में खड़ा है, तो वो वहीं पे रुक गए, वो अंदर ही नहीं आए. ही स्टॉप देयर एंड वुड नॉट, यानी वो आगे नहीं आए. द खान आस्क शिवाजीज वकील वाई शिवाजी स्टूड एट द एंट्रेंस इंस्टेड ऑफ कमिंग इन. तो अफजल खान ने, जो शिवाजी महाराज के साथ वकील थे, यानी पंताजी गोपीनाथ, उनका नाम क्या था, पंताजी गोपीनाथ, उन्हें पूछा कि शिवाजी अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, बाहर ही क्यों खड़े हैं. द वकील सेड, ये सब उनका पहले से ही प्री प्लान था, हाँ, शिवाजी महाराज का, कि ऐसा वो क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ऐसा आंसर देंगे. ओके, तो इन रिप्लाई अफजल खान के क्वेश्चन पे वकील उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, ही इज़ अफ्रेड ऑफ बड़ा सैयद, यानी शिवाजी महाराज को बड़ा सैयद से डर लगता है. एक्चुअल में ऐसा है क्या, कुछ था क्या, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. ये उनका एक स्ट्रैटेजिक मूव था, यानी एक प्री प्लान था, सब पहले से डिसाइड किया हुआ कि उन्हें बड़ा सैयद से डर लगता है. प्लीज़ आस्क हिम टू गो अवे, आप उसे जाने के लिए कहिए. बड़ा सैयद मूव्ड अवे एंड शिवाजी स्टेप इन, और बड़ा सैयद फिर बाहर चला गया, और तब शिवाजी महाराज अंदर आए, शामियाना के अंदर, जहाँ पर अफजल खान पहले से ही मौजूद थे. द खान गॉट अप एंड सेड, कम शिवाजी राजे, लेट अस एम्बैरस ईच अदर एज अ मार्क ऑफ अवर फ्रेंडशिप. और क्या होता है, जैसे ही वो बड़ा सैयद बाहर जाता है, अफजल खान अपने दोनों हाथ, किसी को गले लगाने के लिए हम अपने दोनों हाथ कैसे आगे करते हैं, उसे एम्बैरस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एम्बैरस. तो वैसे उन्होंने किया, और क्या बोला, कम शिवाजी राजे लेटस, चलो शिवाजी महाराज, हम एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपनी फ्रेंडशिप जताते हैं. ओके children, I hope you have understood up till here. In the next class we will continue with the remaining explanation of the part of this chapter, and on Tuesday, means on tomorrow, I will be sending you it's this lesson's writing work. Okay, the writing work is little bit longer, but you have to finish it off. Okay, and give a thorough reading, children, to the chapter. और जो भी आपको समझ में नहीं आया वो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं. किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, बाय, हैव अ नाइस डे.